Ultimate meanings, chinta, fears and anxieties, aprimeya, unmeasurable, cha, and layantam, unto the point of death, upashritaha, having taken shelter of them, kama upabhoga, sense gratification, dharmaha, the highest goal of life, etavat, thus, iti, in this way, nishchitaha, as certain, ashapasha, entanglement in the network of hope, shataihi, by hundreds, baddhaha, being bound, kama, lust, krodha, anger, parayanaha, always situated in that mentality, ihante, desire, kama, lust, bhoga, sense enjoyment, artham, for that purpose, anyayena, illegally, artha, wealth, sanchayan, accumulate. Translation and purport by His Divine Grace of Eternal Arvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: they believe that to gratify the senses until the end of life is the prime necessity of human civilization. Thus there is no end to their anxiety. Being bound by hundreds and thousands of desires, by lust and anger, they secure money by illegal means for sense gratification. Translation with repetition. They believe that to gratify the senses unto the end of life is the prime necessity of human civilization. Thus there is no end to their anxiety. Being bound by hundreds and thousands of desires, by lust and anger, they secure money by illegal means for sense gratification. Purport by Srila Prabhupada. The demoniac accept that the enjoyment of the senses is the ultimate goal of life, and this concept they maintain until death. They do not believe in life after death, and they do not believe that one takes on different types of bodies according to one's karma or activities in this world. Their plans for life are never finished, and they go on preparing plan after plan, all of which are never finished. We have personal experience of a person of such demonic mentality, who even at the point of death was requesting a physician to prolong his life for 4 years more, because his plans were not yet complete. Such foolish people do not know that a physician cannot prolong life even for a moment. When the notice is there is no consideration of the man's desire. The laws of nature do not allow a second beyond what one is destined to enjoy. The demonic person who has no faith in God or the super soul within himself performs all kinds of sinful activities simply for sense gratification. He does not know that there is a witness sitting within his heart. The super soul is observing the activities of the individual soul. As it is stated in the Vedic literature, the Upanishads, there are two birds sitting in one tree. The one is acting and enjoying or suffering the fruits of the branches, and the other is witnessing.
But one who is demoniac has no knowledge of Vedic scriptures, nor has he any faith. Therefore, he feels free to do anything for sense enjoyment, regardless of the consequences. The sense of Bhaktivedanta purport. Om Ajnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna-pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. तो डिवोटीज थोड़ा आगे आ जाइए क्योंकि टीवी में प्रेजेंटेशन है. Everybody can come a little forward and we can switch off the slides. हरे कृष्ण. दिख रहा है आपको टेलीविजन? बस ठीक है. This much is okay. So, this world is a net of unlimited anxiety. ठीक है. ये जो पूरा भवसागर है, पूरा परेशानी से भरा हुआ है. एंजाइटी का कोई एंड नहीं. अनलिमिटेड एंजाइटी इज देयर. द जाल इज देयर. द होल यूनिवर्स इज लाइक दैट. Fully complicated world this is. So we are engrossed and drowned in this world, unfortunately, struggling like anything in this world. Go to the next. Chintam aprimeyam cha. तो दो वर्ड्स हैं. चिंता मीन्स फियर्स एंड एंजाइटीज. अप्रीमेयम uncountable, unmeasurable. So there are unmeasurable fears and anxieties. We are filled with that. So much absorbed in that anxiety world. Because in the early age, he is securing grains and gold for the future. अनाज इकट्ठा करके रख लेते थे सोना, ताकि फ्यूचर में कुछ रिस्क ना हो जाए. और आजकल क्या हो रहा है? आजकल सोच रहा है कि क्रैश ना हो जाए, मार्केट क्रैश ना हो जाए, कुछ फाइनेंशियल क्रंच ना आ जाए, स्टॉक मार्केट में कुछ ना हो जाए, तो मैं उसमें सिक्योर करके रखूँ मनी. तो फ्यूचर का इतना रिस्क है, इतना डाउटफुल confusion in this civilization. So we are packed up with this kind of atmosphere. Next. तो पहले हम बुल्लक कार्ट में जाते थे, अब रोल्स रॉयस गाड़ी में जाते हैं. बट वृत्ति सेम है. जो कॉन्शियसनेस है वो सेम है. ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग. हाउ टू मेंटेन दिस आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च. वृत्ति सेम है. मोटर गाड़ी में बैठा हुआ अच्छी तरह चला रहा है रोल्स रॉयस, वैसे वाला ही मेंटालिटी है. मेंटालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है. सिर्फ कोट पैंट पहन के, टाई लगा के, अच्छा वो CEO चेयरमैन बन गया.
vritti is the same, consciousness is the same. There is no improvement, there is no progress in that. Next. So this is the diagnosis कि मैं इस इंद्र तृप्ति को, ये मेरा सबसे बड़ा गोल है मेरी लाइफ का, प्राइम नेसेसिटी है, इससे ज्यादा अच्छा कोई काम ही नहीं है, मेरा परम लक्ष्य है ये सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, इंद्रियों का भोग करना, ये इतना अच्छा है और इसको मैं पूरे जन्म तक करना चाहता हूं, लाइफ के एंड तक इसको मैं करना चाहता हूं। प्रलयांतम चिंता अप्रिमेयम प्रलयांतम, ये एंजाइटीज को, इमेरेजेबल एंजाइटीज को पूरे डेथ तक मैं मेंटेन करना चाहता हूँ। दिस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ दिस एज, दिस इज द वृत्ति ऑफ दिस एज। नेक्स्ट। सो वी आर इन दिस काइंड ऑफ एटमोस्फियर। द वेल्थ इज देयर, मटेरियलिस्टिक वेल्थ, कि मुझे इतना पैसा मिल जाएगा तो खुशी मिल जाएगी, और पैसे को लेना कैसे है, अगर ले लिया तो ये टिकेगा कैसे, मेंटेन कौन करेगा, और कोई और तो नहीं ले जाएगा इसको, कोई और तो नहीं हड़प लेगा इसको, ये चिंता लगी हुई है, ये हमारा ऐसा बिहेवियर हो गया है ना। एंजाइटी को सॉल्व करने के लिए दूसरी एंजाइटी, जैसे हम कोई वाइन बिखर जाए फर्श पे और उस पे हम वाइन से ही उसको मॉपिंग करें तो क्या होगा, कुछ भी सफाई नहीं होगी। वी आर थिंकिंग लाइक दैट, दिस फायर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी एक्सटिंग्विशिंग बाय एडिंग फ्यूल इन दैट फायर। फ्यूल ऐड करने से कुछ नहीं होगा। तो प्रभुपाद बताते हैं, जैसे बहुत बड़ा मिलियनेयर था तो देखता है कि मैंने आज कितना पैसा कमाया और कल कितना कमाऊंगा, आज मैंने इस कॉम्पिटिटर को बीट किया, कल कितनों को करूंगा, अगला वर्ष वही है ना। कांस्टेंट कंपटीशन, कांस्टेंट चेंज इज देयर। एक बहुत बड़ा व्यापारी था, मर्चेंट था, उसके बाद बहुत फैक्ट्रीज हैं, रियल एस्टेट के बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, होटल्स हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं। देख रहा है कि मेरा अंत समय आ रहा है, क्या करेंगे। तो डॉक्टर्स आ रहे हैं उसके घर में को ट्रीट करने के लिए, उसके साथ सारे गार्ड्स हैं, उसका पूरे घर का टेक केयर कर रहे हैं, उसको नींद नहीं आ रही रात को, इतना बड़ा मिलियनेयर है, स्लीपिंग पिल्स ले रहे, और उसके सेक्रेटरीज जो है सारा उसका ऑफिस को मैनेज कर रहे हैं। फिर भी इतनी एंजाइटी है कि एंड में ये अगर मार्केट क्रैश हो गई तो, अगर मेरे बच्चे प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट के लिए अगर झगड़े तो, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया तो, अगर मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे आगे निकल गया तो क्या हो गया, मैं कोई का नहीं रहूंगा। ये वृत्ति है उसको प्रलयांतम, and to the time of that this kind of anxiety is there, whereas a devotee, simple devotee, वो फर्श पे सोता है, सुबह 4 बजे उठता है, मंगलारती करता है, 16 माला जाप करता है, भागवतम पढ़ता है, प्रसाद लेता है, उसको कोई एंजाइटी नहीं है। He is living very peacefully, no sleeping pills, very peacefully is living, worshipping in Krishna consciousness. तो उसने अपनी बिल्डिंग को मेंटेन किया, अपने बिजनेस को मेंटेन किया, अपने कुत्ते को मेंटेन किया, बट उसको नेक्स्ट बर्थ को मेंटेन करना नहीं आया कि अगला शरीर जो मैं लेने जा रहा हूं वो कौन सा होने वाला है, कहां जाऊंगा मैं, उसके बारे में सोच विचार नहीं किया उसने, और सारा लाइफ उसने वेस्ट कर दिया। क्योंकि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है
यही सब कुछ बता रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, सेंस एंजॉयमेंट के बारे में बताती है, कंपटीशन बता रही है। कभी ये नहीं बताती है कि एंजाइटी को स्टॉप कैसे करना है, डेथ को कनकर कैसे करना है, पीस को कैसे ग्रहण करना है, ये कोई बातें नहीं करता है। इसलिए ये मंडलम लोकरंजनम, दिस काइंड ऑफ licking the honey bottle from outside will not serve the purpose. That whole world is doing like that, behaving like that. Their body language is like that. प्रभुपाद एक कर्मी का एग्जाम्पल देते हैं। कर्मी था और उसने गधे की तरह काम किया पूरे जीवन, कि मैं एंड टाइम में जो रिटायर होगा तो इस सारे सबको एंजॉय करूंगा, इस धन को, इस लग्जरी को पूरी अच्छी तरह एंजॉय करूंगा। उसको पता नहीं है कि जब बूढ़ा हो जाएगा, जब इंद्रियां काम नहीं करेंगी, शरीर काम नहीं करेगा, तो डॉक्टर चाहिए होगा और डॉक्टर मेडिसिन देगा, और मेडिसिन के साथ मुझे डेथ का डर लगेगा, तो क्या एंजॉय करूंगा मैं उस समय? व्हाट आई विल एंजॉय? सो द रियल पीस कम्स व्हेन यू सी दैट यू आर नॉट द शरीर, यू आर डिफरेंट फ्रॉम द शरीर। कृष्णा इज एंजॉय, सर्व कृष्णा। तब आप इस लूप होल से, इस वर्लपूल से, इस जाल से, इस नेट से आप बाहर निकल पाओ। ये तो आप इस नेट में फंसे हुए हो, बहुत एक्सट्रीम, यू आर एंटेंगल्ड लाइक एनीथिंग दिस नेट। प्रभुपाद गिव द पास्ट टाइम ऑफ रावण, एक्चुअली वो भी ऐसे ही था, इमेजरेबल डिजायर्स टिल डेथ। तो उसकी मेंटालिटी कैसी थी? ही वाज अ ग्रेट किंग और स्कॉलर भी था साथ में, वो वेदों का पूरा नॉलेज था उसको, और वेल्थ का तो कोई हिसाब ही नहीं था, जायदाद बहुत ज्यादा थी, स्वर्ण लंका थी, सोने की पूरी लंका थी उसके पास। बट वो क्या कहता था कि मैं एंजॉयर, मैं लॉर्ड हूं, मुझे कोई चेक नहीं कर सकता। He was having that kind of behavior. So finally what happened? He heard about सीता मैया's beauty. सीता मैया का ब्यूटी को सुन लेता है और वो कहता है मुझे ये प्राप्त करना है, आई वॉन्ट टू एंजॉय सीता महारानी। उसके बाद इतनी थाउजेंड्स ऑफ क्वींस हैं, एंजॉयमेंट का कोई लिमिट नहीं है, immeasurable enjoyment. But even then, the kama desire is there to enjoy the wife of Lord Ram. तो ये इच्छा जाग गई, तो हम पेट्रोल में और घी डालेंगे और उगेगा। तो ये जो लस्ट है, ये इसका नेचर होता है, लत लग जाती है और ये सेटिस्फाई नहीं होती है। This is the nature of the lust, unsatisfying, addictive. This is the nature of kama vasana. That Ravana was victimized by that. और वो gone to the height of madness. By trick he kidnapped सीता मैया कि मैं आपसे एंजॉय करना चाहता हूँ, अपने घर ले आते हैं कि मेरे से शादी कर लो, तुम्हें पूरा महल की सबसे बड़ी रानी बना दूंगा। राम को छोड़ दो, क्या जंगल में तुम इतना परेशान हो रही हो उस राम के साथ, मेरे साथ आओ, एंजॉय विद मी। सीता मैया रिफ्यूज्ड। Then he got so much anxiety. He was fully disturbed, angry, restless, and so much obsessed. ये राक्षसों की प्रवृत्ति होती है, ऐसा बिहेवियर होता है उनका।
क्योंकि मटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन मीन्स जो है ये पीसफुल वे में नहीं किया जा सकता. मटेरियलिस्टिक प्लेजर मीन्स एंग्जाइटी. मटेरियलिस्टिक प्लेजर मीन्स एंग्जाइटी. अगर भोग वासना करोगे तो एंग्जाइटी होएगा ही होएगा, 100% होएगा. पीसफुली नहीं कर सकते इसको. और उनको इतने लोग एडवाइस भी दे रहे, उनके खुद के भाई विभीषण बोलते हैं कि सीता जी को छोड़ दीजिए, ये राम की प्रॉपर्टी है, इनको छोड़ दो, तुम राम के भक्त बन जाओ, राम की सेवा करो, छोड़ दो. तुम वो मान ही नहीं रहे हैं. क्योंकि जब तुम ये भोग वासना में लग जाते हो तो उस समय कुछ गुड काउंसिल काम में नहीं आती, कुछ गुड एडवाइस कुछ काम में नहीं आती. रियलिटी दिखती नहीं, अंधा हो जाता है एकदम आदमी, ब्लाइंड हो जाता है, उससे कुछ समझ में नहीं आता. That's why this Maya Shakti is, there are two kinds of Maya. कौन कौन सी आपको पता है? Two kinds of Maya. Who will tell? महामाया में दो तरह की महामाया होती है. एंड हाँ, दो तरह की महामाया होती है. एक आवर्णात्मिका शक्ति और दूसरी प्रक्षेपात्मिका शक्ति है ना. प्रक्षेपात्मिका मीन्स पुलिंग पोटेंसी. जब आप राइज करना स्टार्ट करते हैं, प्रोग्रेस करना स्टार्ट करते हैं, तो माया कहती है नहीं तुम मेरे पास ही रहो. सुबह 4 बजे उठने का शुरू करते हैं कि वो सोए रहो. मंदिर में जाने का कोशिश करते हैं, नहीं आज तो वहाँ शादी में जाना है, सेटिंग. तो ये पुलिंग पोटेंसी माया की तरफ खींचती है. और दूसरी जो शक्ति है जो रावण को थी, दैट इज आवर्णात्मिका शक्ति, कवरिंग पोटेंसी. रियलिटी को देखने नहीं देती है, हमेशा दिखती है तुम शरीर हो, शरीर को एंजॉय करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी. बस दिस इज कॉल्ड आवर्णात्मिका. आवरण करके रखती है, कर्टन करके, रियलिटी को देखने नहीं देती. तो ही वॉज ब्लाइंड विद दैट आवर्णात्मिका शक्ति. कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सो अल्टीमेटली ही वॉज डिस्ट्रॉयड. सो मच मिलिट्री पावर, सो मच मिस्टिक पावर. कितने हेड्स थे उसके? 10 heads. Great power. But he was ruined by Lord Balram. Whatever you are, if you defy God, you will be defeated. Whatever you are. In comparison, Hanuman ji, no wealth, no materialistic power, but he is serving Ram with the best of his capacity. He is glorified as a great devotee. तो ये मटेरियलिस्टिक वेल्थ काम में नहीं आएगी. तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी कॉन्शियसनेस काम में आएगी. इस सारे रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है, यूजेज काम में आएगा. व्हाट इज द यूजेज, हाउ यू आर यूजिंग. सो प्रभुपाद जी इसका कोर एस्पेक्ट बताते हैं. इवन दो ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर बट नो डिवोशन. He was a great king, but no humility. कोई निर्मलता नहीं है, बड़ा अहंकार है, बहुत अभिमान है, बहुत फॉल्स प्रेस्टीज है. He was a great power, full of lust actually. He was a great opulence, no peace is there. तो इतना होने के बाद भी कुछ नहीं है, खोखला है, खोखला ना, अंदर सब्सटेंस कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है सारा. तो ये माया का बहुत बड़ा ये दिखावा होता है. दिखती बहुत ज्यादा है पर अंदर जाओ तो कुछ भी नहीं है, शो ऑफ है. दैट्स व्हाई द मीनिंग ऑफ माया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माया? कौन बताएगा? माया का मतलब क्या है?
वर्ड माया का, माँ प्लस या। माँ मीन्स जो है वो है नहीं है, द थिंग विच इज नॉट देयर। माँ मीन्स द थिंग, या मीन्स नॉट देयर, लुकिंग लाइक देयर इज नॉट देयर। लॉट ऑफ प्लेजर इज देयर इन अमेरिका, यूरोप, बट इट्स नॉट देयर, इट्स लुकिंग लाइक देयर, इट्स नॉट देयर। तो हमें अट्रैक्ट नहीं हो जाना है इस प्लेजर से, इस फॉल्स प्लेजर से, इस टेम्परेरी प्लेजर से अट्रैक्ट मत हो जाओ। देन is destroyed, and then this is the situation of Ravan. This was the situation of Ravan. So we have to receive the mercy of Lord Ram. The mercy of Guru and Krishna is required. Then these things will be corrected. We have to correct ourselves. By default we are all diseased, we are all patients. हम इस जगत में हैं मीन्स हमने कुछ डिफॉल्ट किया हुआ है, तभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं तो हमारा पता नहीं ना होता, फॉल डाउन नहीं ना होता, भगवान के पास होते हैं। वी आर हेयर मीन्स वी आर डिफॉल्टर्स, बट देयर इज ए काइंडनेस, देयर इज ए चांस टू रेक्टिफाई योरसेल्फ, टू करेक्ट योरसेल्फ बाय दिस भक्ति योगा। नेक्स्ट, सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, द इल्यूजन that this life is all in all. Materialistic mentality assume that this is the final curtain, death is the final curtain. Law of karma में कोई विश्वास ही नहीं, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, जो भी ऐश करनी है एंजॉय करना कर लो, उसके बाद खत्म है सब कुछ, कोई लॉ कर्मा नहीं है। तो ऐसा कौन सोचता है? नेक्स्ट, एथिस्ट ऐसा लोग सोचते हैं, एथिस्ट गैम्बल, वो ऐसा सोचते हैं, पास्ट प्रेजेंट पे देखते हैं, फ्यूचर पे आंखों में पट्टी बांध लेते हैं। फ्यूचर कुछ नहीं है, सारा कुछ यही है, ये एंजॉय करो, कोई पुनर्जन्म नहीं है, कोई बॉडी नहीं मिलेगा, सारा कुछ भोग करो इधर ही। तो आंखों में पट्टी बांधने से फ्यूचर रुकने वाला नहीं है। नेचर इज देयर, फ्यूचर इज देयर, जस्ट बाय पुटिंग, यू जस्ट क्लोज योर आईज, यू कैन नॉट रन फ्रॉम द रियलिटी, इट विल कैच यू, बर्न यू। नेक्स्ट, जैसे बच्चा जो है ना, वो आग में हाथ डालता, तो आग कहेगी नहीं ये तो बच्चा है, चलो मैं नहीं जलाती उसको, है ना, ये तो बच्चा है, बच्चे को पता नहीं है, इसका हाथ नहीं जलाऊंगी, ऐसे होगा? चाहे जो भी बच्चा डालेगा, बूढ़ा डालेगा, अमेरिका वाला डालेगा, ऑस्ट्रेलिया वाला डालेगा, उसका हाथ जलेगा। उसी तरह सारे लोग लॉ ऑफ कर्मा में फंसे हुए हैं। दिस लॉ विल वर्क, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस लॉ ऑफ कर्मा। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ कर्मा में एक एक्सेप्शन है। बोलिए, बाहर जाके बात कर लें। There is one exception. What is that? लॉ ऑफ कर्मा में एक एक्सेप्शन है। क्या है? अगर कोई कृष्ण भक्ति में लग जाता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाता है, तो उसका लॉ ऑफ कर्मा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, और प्योर डिवोटी बन के लॉ ऑफ कर्मा जीरो हो जाता है। लाइक प्रभुपाद जी के लाइफ में देयर इज नो लॉ ऑफ कर्मा, कृष्णा इज पर्सनली टेकिंग चार्ज ऑफ द प्योर डिवोटी। तो ये एक एक्सेप्शन है जो लॉ ऑफ कर्मा से बच सकते हैं, और कोई चारा नहीं है और कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप फंस ही जाओगे इसके अंदर। सो इन दैट वे वी हैव टू सॉल्व, वी हैव टू कम आउट, वी हैव टू secure, save ourselves. Yes, next. So these are the
activities which you are doing. आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य वेतम पशुभिर नराणम. नेक्स्ट लाइन आती है किसी को? ये सिमिलरिटीज हैं जानवरों में और इंसान में. एनीबडी? सेकंड लाइन थोड़ा लाउडली बोलिए. ओके. धर्मेण हीना पशुभिर समान. तो ये वाली एक्टिविटी तो मैं तो डनलप के बेड में सोता हूँ. मेरा घर तो 15 एकड़ फार्म हाउस में है. मेरे पास रोल्स रॉयस भी 10 है. बैंक बैलेंस भी 5,000 करोड़ है. बहुत है. बट एक्टिविटी तो वही है. एक्टिविटी तो जानवर जैसी है. तो क्या अंतर है? धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर. तो तुम कौन हो? कृष्ण कौन है? तुम्हारा संबंध क्या है? उस जीवन में तुम क्या फंसे हुए हो? बाहर कैसे निकलोगे? वो तुम्हें मनुष्य बनाता है. ऐसी चीजें वो तुम्हें ह्यूमन बीइंग बनाता है. कृष्णा कॉन्शियसनेस. इफ यू आर नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस यू आर लाइक एनिमल ओनली. यस. सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आशा पाश सदैर बद्धाः. आशा पाश. आशा का मतलब है होप्स. और पाशा रोप. सतैर मीन्स हंड्रेड्स आर देयर. Hundreds of ropes have bound you like anything. मुझे तो अभी सिंगापुर में घर भी बनाना है. अपनी सुंदर सी बहू भी लेके आनी है. अच्छा बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करना है मुझे. तो बहुत आगे बढ़ना है मुझे. अंबानी की टक्कर तक जाना है मुझे. ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है. आशा पाशे सतैर बद्धाः. उसे बंध गया ये आदमी इतनी आशा से. इतनी आशा से बांध के रख दिया साहब. सो दिस ऑब्सेशन इज देयर. काम उपभोगा. बट सारी की सारी जो डिजायर्स हैं, सारी की सारी जो आशाएं हैं, वो माया वाली आशाएं हैं. सारी माया वाली आशा है. कोई भी आध्यात्मिक आशा नहीं है. नेक्स्ट. तो उसमें ये इस तरह का इसका ये बिहेवियर हो रहा है. इसमें क्या करूं कुछ हो ही नहीं रहा है. गाड़ी आगे चल ही नहीं रही है. क्या करूं आगे? तो आई एम एंटेंगल्ड इन दिस. माय माइंड इज स्पिनिंग. My heart is reeling. कुछ समझ में नहीं आ रहा. Confused. So this world is confused. Where to go? क्या करना है कुछ पता नहीं है मुझे. मुझे लाइफ का गोल पता नहीं है. कोई डायरेक्शन नहीं है. कोई मुझे समझाने वाला नहीं है. ये मेरी सिचुएशन हो चुकी है. नेक्स्ट. तो we think satisfying desires bring freedom. But it is more like a shackle. जैसे दुर्योधन था, वो पूरा फंस गया था ना. तो सब कुछ मुझे मिल जाए, सारा कुछ मुझे मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए. और एनवियसनेस से साथ है कि अपने भाइयों को वो धक्के मार के उनको मार दो और सारा चीज मैं एंजॉय करूं. This is the mentality of a demoniac people. Even सुई की नोक जितना भी जमीन नहीं दे सकता. This is the mentality of the demonic people. And you are doing like that. So much entanglement is there. Next. तो ऐसे सोचते हैं कि ये मैं काम बाद में कर लूँ.
मुझे आज ना हम बिजी हैं, अगले संडे आ जाएंगे, नेक्स्ट संडे आएगा। अभी ना अगले संडे नहीं, अभी 10 दिन के लिए बिजी है प्रभु जी। अभी मैंने बच्चों के साथ ना फॉरेन ट्रिप जाना है, तो अगले महीने आएंगे। फिर ये आ गया लेटर, आई विल डू इट लेटर, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। बात कभी नहीं आएगी, बात कभी नहीं आएगी। तो ऐसे एक पागल व्यक्ति क्या करता है, वो फिजिशियन को बोलता है कि मेरी डिजायर्स पूरी नहीं हुई हैं, मेरा पूरा काम पूरा नहीं हुआ है, 4 साल और दे दे मुझे 4 साल दे दे, मैं सारी इच्छाएं पूर्ति करूंगा, सब कुछ करूंगा। फिजिशियन कह रहा है 4 मिनट नहीं मिलेंगे तुझे। दिस नेचर विल नॉट stop for anyone else. When the time has come, you have to go. Time and tide wait for no man. The Kala is there. Mrityu has come. You cannot escape. You have to suffer. That's why our movement is Art of Dying. एक मूवमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है आर्ट ऑफ लिविंग, है ना। हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है आर्ट ऑफ डाइंग, मरना कैसे वो हम सिखाते हैं। यम यम वापी स्मरण भाव, अभी आएगा आगे, कृष्णा उसमें टीच करते हैं मरना कैसे है, क्योंकि सारा जो एनर्जी है वो डेथ में है। फाइनल एग्जामिनेशन सब कुछ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारा कुछ क्या किया है सारा कुछ निकल के आ जाएगा उसमें। Everything will be tested at the time of that. What you are so much addicted with that, you are so much absorbed in what the thing entire life. क्या पढ़ा तुमने सारा साल, फेल हो गए हो, क्या पढ़ाई किया तुमने। तो हर साल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर महीना, हर हफ्ता, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और व्यर्थ कालत्व, अभी तो यंग है, अभी तो आराम से कर लेंगे, अभी थोड़ा एंजॉय करने दो, बाद में मंदिर आएंगे। अगले क्षण का तुम्हें पता नहीं है और तुम एंजॉय करने की बातें कर रहे हो, क्यों फंसे हुए हो, कौन सी दिशा में जा रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो तुम, तुम्हारा क्या विश है, क्या सोच रहे हो तुम। नेक्स्ट। तो ये एक मर्चेंट था, वो क्या बोलता था कि मुझे ना एक डील और करनी है, ये एक डील कर लूंगा, बिजनेस डील थोड़ी सी एक बची हुई है, ये एक डील होने दो बस मेरी, उसके बाद मैं पूजा पाठ में लग जाऊंगा। ये बुढ़ापे की इसकी ये ऐसी वृत्ति है, बूढ़ा हो चुका है फिर भी मेरा बिजनेस डील करनी है अभी मुझे, and after that I will start worshipping God. So this kind of mentality is there. Next. So this is the fuel actually. जो material existence में जो fuel डाल रहे हैं वो इन दोनों चीजों का है, कामा एंड क्रोधा। इसने हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी है, सारा पूरा एनर्जी हमारी इसमें लग गई, इसलिए इधर नहीं लगती। एनर्जी इज लिमिटेड एक्चुअली, अनलिमिटेड कृष्णा है, हम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है। कहाँ लगानी है आप देखो, क्योंकि हमने सबने अपनी एनर्जी यहाँ पर लगाई हुई है, काम और क्रोध में। तो एक यजाति महाराज थे, तो ही इज फॉन्ड ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, भोग करने की बहुत इच्छा थी, और उनको श्राप मिलता है, उनकी इमेच्योर ओल्ड एज हो जाती है, और वो कहते हैं कि सेजी से कि मुझे तो अभी बहुत भोग करना है, बहुत एंजॉय करना है, अभी इतनी जल्दी बुढ़ापा आ गया, कैसे एंजॉय करूंगा, तो मुझे अपनी यूथ मेरा वापस कर दो, मुझे एंजॉय करना है अभी।
सेंस ग्रेटिफिकेशन करनी है अभी। तो सेज कहते हैं इफ यू वांट यू कैन आस्क योर सन्स, योर यंग सन्स आर देयर, इफ यू कैन दे कैन शिफ्ट, दे कैन टेक योर ओल्ड एज एंड दे कैन गिव यू यूथ इन रिटर्न। आस्क। तो सारे बच्चों से पूछते, सारे मना कर देते हैं, एक बेटा मान जाता है और उस बेटे का यौवन लेके वो 1000 साल तक भोग करता है और फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। 1000 years he enjoyed, not satisfying, because his sense gratification nature is non satisfying. ये आपको खींच लेगी, आजा आजा आजा, ऐसा खींचेगी सीधा हेल में लेके जाएगी। ये लस्ट जो है हमें नरक के लिए इनवाइट कर रही होती, कम कम कम। So this is the nature of the lust. So we should be, from lust we have to love. We have to change, we have to total this lust to love. Love Krishna. Love Radha Vrindavan Chandra. Love Nitai Gauranga. Love Prabhupada. Have to love them. क्योंकि लव किए बिना हम रह नहीं सकते। और लव जो है, लव वाला वर्ड सिर्फ कृष्ण के साथ एप्लीकेबल है और किसी के साथ लव हो ही नहीं सकता। द लव वर्ड इज देयर, इज एप्लीकेबल ओनली टू कृष्णा। बाकी सबके साथ लस्ट होता है, कुछ ना कुछ मोटिव होता है, लव नहीं होता है। दूसरा इज एंगर। हिरण्यकशिपु was full of anger. जब एंगर आता है तो पूरा शरीर जो है पॉल्यूट हो जाता है। जब गुस्सा आता है पूरा शरीर पॉल्यूट हो जाता है, इसलिए एंग्री नहीं होता। हिरण्यकशिपु जब एंग्री होते थे तो देवी देवता लोग डरते थे, जब अपने आईब्रोज हिलाते थे देवी देवता कांपते थे। सो एंग्री। तो एंगर कब आना चाहिए? डिवोटीज को एंगर कब आना चाहिए? हरि बोल। आना चाहिए भक्तों को एंगर दो सिचुएशन में। जब कोई भगवान की निंदा कर रहा है, भगवान को ब्लास्फेम कर रहा है, भगवान को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आपको चुप नहीं बैठना है उधर, उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। और अगर वो जो भक्तों ने जीवन समर्पित कर दिया है उनको कोई क्रिटिसाइज करे, उनको कोई ब्लास्फेम करे, तब भी आपको सेम चीज, सेम ट्रीटमेंट करना है। तब आपको सुनते नहीं रहना है। यू कीप ऑन हियरिंग, you will fall down then. He will fall down, you will also fall down. बोलने वाला सुनने वाला दोनों गए। इसलिए ये तब एंगर आ जाना चाहिए उस टाइम पे, है ना। सारी चीजों की प्लेस होती है, कहाँ पर क्या क्या चीजें करनी है। एवरीथिंग प्रभुपाद मेंशन्ड एवरीथिंग, देयर इज नो कंफ्यूजन, एवरीथिंग इज फुली डिस्क्राइब्ड इन हिज बुक्स। नेक्स्ट। तो ये इस तरह चलता है। काम क्रोध अन्येन अर्था 2.62 में आएंगे, सेकंड चैप्टर के 62nd वर्स में भगवान इसको बताते हैं। बोल रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगास्तेनु पजायते, संगा संजायते कामः कामात् क्रोध भिजायते। जिससे ये कैसे विशेष सर्कल चलता है, ये कृष्ण भगवान भगवद गीता में उसको बता रहे हैं कैसे चलता है ये। वाइल कंटेम्पलेटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस, जब हम विषयों पे मनन कर रहे होते हैं, जब इंद्रियों के विषयों में टच में आती हैं तो मनन स्टार्ट हो जाता है, कंटेम्पलेशन स्टार्ट हो जाता है। कंटेम्पलेशन होने से क्या होता है, ए पर्सन डेवलप्स अटैचमेंट फॉर दैम, तो उससे आसक्ति होनी स्टार्ट हो जाती है, अटैचमेंट स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद
फ्रॉम सच अटैचमेंट लस्ट डेवलप्स। ये कैसे सारा कुछ होता है, सब कुछ भगवद गीता में मेंशन। अटैचमेंट से एक काम उत्पन्न होता है, लस्ट डेवलप हो जाता है। एंड फ्रॉम लस्ट क्रोध अराइजेस, क्योंकि जब लस्ट सेटिस्फाई नहीं होती ना, डिजायर्स हैं लस्टी डिजायर्स मटेरियलिस्टिक, जब सेटिस्फाई नहीं होती तो क्या होता है, क्रोध आता है, एंगर आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो उससे क्या होता है, फ्रॉम एंगर डिल्यूजन अराइजेस, क्रोध से हम इल्यूजन में आ जाते हैं, अपने आप को शरीर मानना शुरू कर देते हैं। मैं शरीर हूँ, मैं बॉडी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं जापानीज हूँ, इंडियन हूँ। फ्रॉम डिल्यूजन बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, इल्यूजन के बाद क्या होता है, हमारी जो मेमोरी है वो बिविल्डर हो जाती है, बिविल्डर हो जाता है। इस माया के प्रभाव से बिविल्डरमेंट होता है ना, लोग सारे बिविल्डर्ड इस ग्लेयरिंग एनर्जी से, इस alluring एनर्जी से, इस ग्लिटरिंग, इस शाइनिंग से सारे लोग bewildered है। When memory is bewildered, intelligence is lost। तो मेमोरी bewildered होती है, बुद्धि जो है हमारी सारी नष्ट हो जाती है, उससे बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि खत्म हो जाती है। And when intelligence is lost, one falls down again into material pool, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो ये चक्कर शुरू हो जाता है, ऐसे चक्कर चलता है ये। तो पहले अगर इस चक्कर को स्टॉप कर दो तो चक्कर शुरू ही नहीं होगा। जैसे किसी फैक्ट्री में जाए ना, वो पहले आटा बनाते हैं, फिर उसके पूरी प्लेट बनती है, फिर उसको कटती है, फिर वो चपाती बनती है, कुछ भी बनता है, पूरा प्रोसीजर होता है। तो दिस प्रोसीजर इज देयर। ये सारा काम कैसे होता है, थॉट लेवल पे खत्म कर दो उसको, देन यू कैन बी सेव्ड, अदरवाइज गॉन। माया खत्म कर देगी आपको, तो माया बहुत बड़ी एनर्जी है, इनसरमाउंटेबल एनर्जी है, बच नहीं पाओगे उससे आप। नेक्स्ट, तो उससे हम क्या करने लगते हैं, जब डिजायर्स पूरी नहीं हुई, क्रोध आ रहा है, तो हम अनफेयर मीन्स को यूज करना शुरू कर देते हैं, इलीगली ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, किसी ना कहीं से धन लाके मुझे एंजॉय करना है, कहीं से भी पैसे आ जाए यार, मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन को रोक नहीं सकता हूँ, किसी भी तरह पैसा लेके आऊंगा या फिर चोरी करूंगा, कुछ भी करूंगा, ये लेके आऊंगा मैं। तो ही स्टार्टेड दिस ब्लैक मार्केटिंग, क्राइम करना शुरू कर देता है, इलीगल मीन्स यूज कर लेता है। नेक्स्ट, so he is doing like this, he is entangled like this, that way is entangle, black marketing। तो इतना अटैचमेंट है इस लस्ट के साथ, he is doing all unfair means, illegal means he is using। नेक्स्ट, तो एक आदमी था, वो ओल्ड एज में ग्रेनरी को सोच रहा है, अपने जो धानवास है जहाँ पर सारा ग्रेन्स उसके स्टोर है, उसकी याद आ जाती है उसको अंत समय में। तो क्या क्या बनता है वो उस घर में एक वॉर्म बन गया, अपनी बिलवेड प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए इज बिकमिंग ए वॉर्म। मर्चेंट बिकम्स द वॉच डॉग। तो ये हाल होने वाला है, कुछ भी अगर मटेरियलिस्टिक सोचा, इमीडिएट रिएक्शन। नेचर बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज है नेचर के, जैसे सुप्रीम कोर्ट के लॉज है ना, नेचर के बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज है, ऐसे किया ये मिलेगा, ये किया ये मिलेगा, ये किया ये मिलेगा। नेचर किसी का ध्यान नहीं रखती, जो किया वो मिलेगा। नेक्स्ट, सो देयर आर
two birds, Prabhupada is mentioning here in the purport, क्योंकि उसको पता ही नहीं है वो कहाँ गलत काम करता जा रहा है। उसको पता नहीं है कोई देखने वाला अंदर, कोई देख रहा है तुमको। So there are two personalities in the body. इस शरीर में दो तरह की पर्सनालिटीज बैठी हुई है, दो बर्ड्स बैठे हुए। एक ईटिंग बर्ड है जो कर्म कर रहा है ना, डिवाइन और डिमोनिक नेचर्स कर रहा है, और एक बर्ड है जो उसको देखता जा रहा है। और एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा है। He is watching you 24/7 what you are doing. When you are sleeping, you are in wherever he is watching. Next. So anxiety is caused by the struggle to enjoy independently. As long as we focus on the fruit, we suffer. जब तक फ्रूट्स पे फ्रूटिव एक्टिविटी करोगे, वो ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, ये कर लो, वो कर लो, तब तक आप सफर करते रहोगे। नहीं, फ्रूटिव मेंटालिटी, फ्रूटिव वर्कर्स, तब तक आप कष्ट में रहोगे, परेशान रहोगे, मिजरीज में रहोगे। द मोमेंट द सोल टर्न्स टुवर्ड्स द परमात्मा, यू बिकम पीसफुल। ही इज वेटिंग फॉर यू। वेट कर रहे होते हैं, कब देखेगा, कब देखेगा, कब देखेगा, कब देखेगा, कब देखेगा। वो देखता है इतना बिजी है, इतना बिजी हूं मैं तो इस मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी, इतना बिजी हूं मैं, टाइम ही नहीं है मंदिर आने का, वो सब प्रभुपाद बुक पढ़ने का, ये सारा कुछ कर, वो टाइम नहीं है, बहुत बिजी चल रहा हूँ मैं, बहुत बिजी हूँ मैं। नेक्स्ट। तो तुम कभी भी अकेले नहीं हो, अनऑब्जर्व नहीं हो, तुम्हारी ब्रेथ से भी ज्यादा क्लोज कृष्ण बैठे हुए हैं, तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए सब कुछ वॉच हो रहा है, सारा कुछ। इसलिए वो दो एक्टिविटी करते हैं, उपदृष्टा अनुमंता। जो अंदर बैठे भगवान है, दो काम करते हैं। एक तो वो विटनेस करते हैं, उपदृष्टा, और दूसरा क्या करते हैं? उनकी परमिशन से एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक तिनका भी घूमता नहीं है। तो सारी चीजों में उनकी सैंक्शन चाहिए। तो जैसे डिजायर होगी, सैंक्शन हो जाएगी। इसलिए भगवान को भूलना चाहोगे, भगवान भुला देंगे। भगवान को याद करना चाहोगे, भगवान याद करेंगे। तुम्हारी इच्छा क्या है? So Krishna wants to purify your desire because he wants to use your free will. भगवान ने कुछ स्वतंत्रता दी है, उसको भगवान कह रहे यूज करो, बट 99% लोग उसको मिसयूज करते हैं, इसलिए वो जा नहीं पाते, बहुत कम परसेंटेज जा पाती है। नेक्स्ट। तो देयर आर टू डेस्टिनेशन, है ना, डिवाइन एंड डिमोनिक। हमें कहाँ जाना है, वी हैव टू चूज। नेक्स्ट। तो देयर द क्योर इज नॉट नो थिंकिंग। थिंकिंग को जीरो नहीं कर सकते कि मैं कुछ सोचना ही नहीं है, नल एंड वॉइड हो जाए, वो हो ही नहीं सकता। या तो माया का सोचो या कृष्ण का सोचो, बीच में तुम रह नहीं सकते हो। दो साइड्स हैं, माया है, कृष्ण है ना। इसलिए तुम अपना मेंटेनेंस को छोड़कर सेवा के बारे में सोचो। मुझे सेवा करनी है, मुझे प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाना है, मुझे और डिवोटीज बनाने हैं, मुझे अच्छी प्रीचिंग करनी है, मुझे सेवा में आगे बढ़ना है। ये सोच विचार करो, ये थिंकिंग करो, ऐसा अपना कॉन्शियसनेस रखो। नेक्स्ट। सो कृष्णा इज टेलिंग मन मना भव मद भक्तो। माइंड इज एक्टिव, कैन नॉट बी एम्प्टीड, मस्ट बी रीडायरेक्टेड। Next. So instead of engaging mind in chinta, do chinta of Krishna. By practicing this remembrance Krishna at the time of death, you will be escape from janam and mrityu. तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने वाली है। किसी को गाना है तो गाने की प्रैक्टिस करता है,
किसी को पेंटिंग करनी है, पेंटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, किसी को डांस करना है, डांस की प्रैक्टिस होती है। आप सारे मटेरियल वर्ल्ड में इतना प्रैक्टिस कर रहे हो, स्पिरिचुअल लाइफ में कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। तो ये रिमेम्बरेंस वाली, ये थिंकिंग वाली, ये प्रैक्टिस करना है। कितना सोच रहा है कृष्ण को दिन में? आधा घंटा सोचा, 1 घंटा सोचा, 2 घंटे सोच लिया। आज मैंने 3 घंटे सोच लिया, और थोड़ा बढ़ाता जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर पूछते हैं कि प्रभुपाद जी, उन्होंने पिछले 4 साल में कितनी बार कृष्ण को रिमेम्बर किया? तो प्रभुपाद जी पॉज लेते हैं और बोलते हैं कि कोई ऐसा क्षण नहीं था जो कृष्ण को बोला हूँ। कांस्टेंट, विदाउट लीकेज, विदाउट स्टॉपेज रिमेम्बरेंस चल रहा है। तो वो स्टेज पे हमें पहुंचना है। दैट इज अ टॉप मोस्ट आइडियल स्टेज। ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा। नेक्स्ट, ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। वर्शिप कृष्णा, पे होमेज टू कृष्णा, बिकम डिवोटी ऑफ कृष्णा। ये 4 चीजें करने से तुम मेरे धाम में प्राप्त हो जाओगे। कृष्णा इतना कुछ सप्लाई कर रहे हैं, कृष्णा थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन करते हैं। बस 4 चीजें करो, मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, नेक्स्ट लाइफ में मेरे धाम में आ जाओगे। सिंपल। तो हमें वैकुंठ में जाना है। अभी वैकुंठ में है, द नेट ऑफ अनलिमिटेड एंग्जाइटी। पहले वाला स्लाइड था, सबसे पहला वाला वो कुंठ था, अभी इसमें जाना है ना। विदाउट एंग्जाइटी, वैकुंठा, अ प्लेस ऑफ नो एंग्जाइटी, जहां पर आप अपने स्वरूप में होंगे। अभी ये जो आपने पिंजरा डाला हुआ है, ये आर्टिफिशियल पिंजरा है शरीर का। इस पिंजरे ने आपको बांध के रखा हुआ है, तो आप आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हो यहाँ पर। ये नेचुरल लाइफ नहीं है, ये आर्टिफिशियल लाइफ है हमारी। इस आर्टिफिशियल लाइफ को छोड़ के अपनी ओरिजिनल लाइफ में जाओ। और वो वाली लाइफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, वो वाली लाइफ वैकुंठ में है। प्रभुपाद डोंट वेस्ट। ये तुम्हें जीवन जो मिला है, ये वेस्ट मत करो इसको। इसमें सारी चीजें पॉसिबल है। हाई थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक टू कृष्णा। मुझे कृष्ण के पास जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। कितनी डिजायर तुम्हारी सीरियस है, कितना सिंसियर, कितना पानी में हो तुम, कितनी आग लगी हुई है कृष्ण को मिलने के लिए, कितना स्ट्रांग हो तुम। तो कृष्ण वो वॉच कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर बैठे हुए तुमको वॉच कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट। तो इस पिंजरे को तोड़ दो, ब्रेक द केज। क्योंकि 84 लाख तरह के पिंजरे तुम चेंज कर चुके हो। 84 लाख तरह के पिंजरे से बाहर निकलो। ये बॉडी वाला पिंजरा, एम्बॉडीड सोल, बॉडी के अंदर आत्मा फंसी हुई है ना, ये बर्ड की तरफ फंसी हुई है। बाहर निकलो यहां से। नेक्स्ट। तो ये काम हमें करना है। नेक्स्ट, कृष्ण मुझे रिमेम्बर करो, तुम्हारा लाइफ पूरा सफल हो जाएगा। मुझे रिमेम्बर करो, इसमें तुम्हारा लाइफ ऑस्पिशियस है, सफल है। नेक्स्ट। तो चैंटिंग करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अल्टीमेटली यही करना है। मीन्स भी है, एंड भी है। अभी भी यही करना है, वहां पर जाके भी यही करना है। माला दे दो, लाइट्स ऑन कर दो। दिस चैंटिंग हरे कृष्णा इज द मीन्स एंड एंड बोथ। अभी हम इसको दवाई की तरह ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम डिजीज्ड हैं। पेशेंट तो दवाई लेता है, तो दवाई की तरह हरि नाम महामंत्र, लॉ तुम बीमारी, ये औषधि की तरह काम कर रही है। और वहां पर जाके हम इसको रेलिश करेंगे, डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे इसको।
एक एक मंत्र हमें हर्षोल्लास भाव विभोर कर देगा। अभी हमारे को नींद आती है माला में, या मन भटकता है इधर, और उसमें कहेगा और करना है। सो दिस इज द मैसेज ऑफ कृष्णा भगवद गीता। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Any questions? मटेरियल डिजायर्स हैं, जो लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो इतनी ज़्यादा है कि मतलब कि हम उतना कृष्णा कॉन्शियसनेस में लग नहीं पाते हैं, तो इसको कैसे कम करें? We have to increase our spiritual life and decrease our material life gradually. That is a sign of progress. Consciousness level पे करना है, फिजिकल लेवल पे नहीं करना। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल बोलते हैं, एक न्यूली वेडेड कपल है और जो वाइफ है उसका अफेयर चल रहा है, तो क्या करती है कि घर का काम बहुत अच्छी तरह करती है, और दिमाग में उसको वो लवर होता है, दिमाग में पूरा टाइम उससे मिलना है, उससे जाना है, और घर का काम ऐसे करती है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं वी शुड बी लाइक दैट। अपना वर्ल्डली काम ऐसे करो और पूरा टाइम कृष्ण को सोचते रहो। तो कॉन्शियसनेस लेवल पे हमें प्रोग्रेस करना। कॉन्शियसनेस का मामला है और कोई मामला ही नहीं है, और कोई मामला नहीं है। तो हम जब चैंटिंग करते हैं, जब रीडिंग करते हैं, तो अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व कर रहे होते हैं। तो हमें साथ में प्रार्थना भी करनी है, ठाकुर जी को, डीटीज को प्रेयर करना है सीरियसली, सिंसियरली। आई वॉन्ट टू प्रोग्रेस, दिस इज द माई शॉर्टकमिंग, दिस इज द वीकनेस, दिस इज द चैलेंजेस आई एम फेसिंग एवरी डे, so please remove them so that I can focus on your service very intensely, very nicely. Pray it from the core of your heart, and Krishna will listen and benedict and bless you very nicely. Don't worry about that. इसमें हम बस लगे रहने से ही काम हो जाएगा। हम पता नहीं प्योर डिवोटी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और बस इस प्रोसीजर में लगे टिके रहो, बस यहाँ पर अपने एंडेवर्स करते रहो। तुम्हारा एंडेवर करना ही तुम्हारी क्वालिफिकेशन है ना। प्योर डिवोटी बनना है वो तो भगवान बनाएंगे, तुम बस एंडेवर करते रहो, अपना प्रयास करते रहो, अपनी चेष्टा करते रहो, ट्राई करते रहो, वही तुम्हारी क्वालिफिकेशन। क्योंकि कृष्णा फ्रॉम विद इन इज वॉचिंग यू, प्रभुपाद इज वॉचिंग यू। प्रभुपाद बाहर से वॉच कर रहे हैं, कृष्णा अंदर से वॉच कर रहे हैं, दोनों लोग वॉच कर रहे हैं। तो पता है कि कितना सिंसियर है ये आदमी। ओके, विल डिस्कस मोर इफ यू वांट आफ्टर द। तुम चैंटिंग करें अभी। ये हमारी मेन एक्टिविटी है।